کس بیس پہ آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ ڈسگسٹنگ ایکٹ ہے؟ ٹھیک ہے، آپ نے مطلب آپ نے جب اسلام کی بات ہی نہیں کرنی، آپ نے یا تو نا کہ تم نے ڈسکشن سٹارٹ ہی کیا ہو کہ جی جو اللہ اس کے رسول کا فیصلہ ہے وہ ہمارا فیصلہ ہے. جب آپ نے وہاں سے بات شروع ہی نہیں کی، آپ نے کہا کہ جی کچھ چیزیں جو ہیں وہ تو پبلک ڈسپلے میں آتی ہیں، مطلب ان کا کہنا کہ مقصد یہ تھا کہ کسنگ جو ہے جو کچھ ہوا ہے وہ ٹھیک ہے، اس میں کیسی بڑی بات ہے، وہ تو باہر بھی ہوتا ہے، ہم بلائنڈ آئی کر دیتے ہیں. لیکن کچھ ایکٹس بہرحال ایسے ہو سکتے ہیں جو کہ ڈسکسٹنگ ہوتے ہیں. کیوں ڈسکسٹنگ ہے وہ بھی کیوں نہ پبلک میں ہم لوگ کریں؟ مطلب اس میں کیا مسئلہ ہے؟ اگر آپ نے یہاں تک اجازت دے دی ہے تو برائے مہربانی تھوڑی اور دے دو تاکہ پبلک ایک دفعہ پوری طرف سے یعنی وہ جو ہے نا وہ تسلی بخش کام ہو. اس کا مطلب ہے ہم کس کی ڈیفینیشن پہ چل رہے ہیں؟ ہم اپنے مورلز جو ہیں قرآن سے نہیں لے رہے، اللہ تعالیٰ سے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ہم اپنے مورلز نہیں لے رہے. نہیں سر، وہ جو حیدر نے کہا تھا نا کہ اصل میں یہ لوگ اپنے بھی سٹینڈرڈز پہ کنسسٹنٹ نہیں ہیں. بالکل یہ اپنے بھی کنسسٹنٹ نہیں، ہم گوروں کی سوسائٹی سے یہ سارے مورلز لے رہے ہیں. سینسر بورڈ پہ ہماری جب موویز جاتی ہیں سینسر ہونے کے لیے تو اس میں سارے جو رومانٹک سینز ہوتے ہیں وہ کاٹ دیتے ہیں، لیکن جو وائلنٹ سین ہوتے ہیں جس میں وائلنس دکھایا جا رہا ہوتا ہے اور بہت زیادہ وائلنس دکھایا جا رہا ہوتا ہے اس کو کبھی نہیں کاٹتے. وہ ہمارے بچے جو ہے وہ گھر میں بیٹھ کے دیکھتے ہیں، وہ ایکسیپٹیبل ہے. تو ہمارے معاشرے میں رومانس ایکسیپٹیبل نہیں ہے، لیکن وائلنس ایکسیپٹیبل ہے، تشدد ایکسیپٹیبل ہے، اور وہ گھر کا معاملہ ہے. اور میں حیران ہوں کہ یہ سو کالڈ ایکسپرٹس بٹھائے ہیں انہوں نے اس پینل پہ، اور سارے کے سارے اگر آپ ان سب کی باتیں سنیں تو ان کا جو مین پوائنٹ ہے نا وہ یہی ہے. حالانکہ اس لیے اس کو رانگ کو بھی مت روکو. میں حیران ہوں these are so called experts. یہ وہ پھپھی جان والا آرگیومنٹ ہے. پتہ کون سا پھپھی جان والا؟ کہ بیٹا اگر تم نے نماز نہیں پڑھنی نا تو حجاب کرنے کا کوئی فائدہ نہیں. یہ وہ والے آرگیومنٹ ہے. اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ جب آپ اپنے آپ کو آئیڈینٹیفائی نہیں کر رہے ہو کہ یار آپ ہو کون، کہاں سے آئے ہو، آپ یہودی ہو، کرسچن ہو، ہندو ہو، آتش پرست ہو، آپ ایتھیسٹ ہو، آپ کا مذہب کیا ہے، آپ کے مورلز کیا ہیں، آپ کا اینکر کیا ہے، کہاں سے آپ مورلز لیتے ہو؟ بھائی میرے خیال ہے ہر اینکر کو چاہیے کہ وہ سب سے پہلے آ کے بتا دیا کرے کہ جی میں ایز اے مسلمان بات کر رہا ہوں، ٹھیک ہے، یا میں اس وقت ایتھیسٹ ہو کے بات کر رہا ہوں، میں اللہ کو بیچ میں نہیں لانا چاہتا. تو تاکہ ہم آڈینس کو نا کلیئر ہو جائے کہ یار یہ کس پوائنٹ آف ویو سے بندہ آ رہا ہے. بیکاز ایک طرف آپ یہ شو کر رہے ہیں کہ جی ہم تو مسلمان ہیں، ہم تو فلاں ہیں، لیکن دوسری طرف آپ کا جو نیریٹو آ رہا ہے وہ بالکل اینٹی اسلامک ہے. یہی جو طبقہ سارا کا سارا یہ والی بات ابھی کر رہا ہے نا کہ ان کو جو کرنے کی ان کو اجازت جو مرضی کریں، وہ ان کی اپنی مرضی، ان کا اپنا پرسنل اسپیس ہے، وہ جو مرضی کریں. یہ وہی طبقہ ہے سارا کا سارا جو کہ اس بات پہ شور مچا رہا تھا کہ اگر کوئی مرد راہ چلتی عورت کو دیکھ کے اپنے پرائیویٹ پارٹس کو ٹچ کرتا ہے تو دیٹ از ہراسمنٹ اینڈ ہی شوڈ بی امپریزنڈ. اینڈ وی ٹوٹلی اگری ود اٹ. بالکل ٹھیک بات ہے. اگر ہی از ٹچنگ ہز پرائیویٹ پارٹس اینڈ یو آر سیئنگ دیٹ از ہراسمنٹ ٹورڈز یو، تو اگر کوئی بندہ بچوں کے سامنے بیٹھ کے دے آر انگیجنگ ان ناٹ ان جیسے آپ کہتے ہیں نا کہ پی ڈی اے کہتے ہیں، دس از ناٹ پبلک ڈسپلے آف افیکشن، دس از ایکچولی انٹیمیسی. یہ فور پلے ہو رہا ہے یہاں پہ، اور آپ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ جی دس از کیا کہتے ہیں پبلک ڈسپلے آف افیکشن اگین ان کانٹیکسٹ آف اسلام اینڈ پاکستان. ہم اگر پاکستان کو ذرا تھوڑا سا نکال دیں اس پورے معاملے سے، اگر ہم باہر جا کر دیکھیں تو یہ پبلک ڈسپلے آف افیکشن یہ موسٹلی جگہ پر ہو رہا ہوتا ہے. وی جسٹ ٹرن اے بلائنڈ آئی ٹورڈز اٹ. اٹ ڈزنٹ میٹر ٹو اینی بڈی کہ لوگ کیا کر رہے ہیں کیا کر رہے ہیں. اف یو ٹریول اراؤنڈ دا ورلڈ، اور ہم سب میں سے ہر ایک نے ٹریولنگ کی ہے تو اتنا اندازہ تو ہر ایک کو ہوگا کہ کیا ہو رہا ہے. پہلی بات میں نے پہلے کہا ہے مائنڈ یور اون بزنس. دوسری بات ایٹ روم ڈو ایز دا رومنز ڈو، وہ پاکستان فیکٹر جس پہ بات ہو رہی. تیسرا، اعتراض کرنے والے اگر یہی فن خان کسی مغربی معاشرے میں ہوتے تو کیا کر لیتے؟ آپشنٹی کی بھی اپنی اپنی ڈیفینیشنز ہیں. میری نظر میں آپشنٹی کچھ اور ہے، آپ کی نظر میں کچھ اور ہو سکتی ہے، کسی اور کی نظر میں کچھ اور ہو سکتی ہے. ویسے ہی ہمارا ریئیکشن بھی ہوتا ہے. Who will define obscenity in the context of Islam and being Muslim? اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، یہ وہی فطرت الہی ہے جس پہ اللہ نے انسان کو پیدا کیا. یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنی فطرت پہ ہمیں پیدا کیا اور پھر ہمارے اندر کچھ فطرہ پروگرامڈ ہے. سوری، آپ نا قرآن کی بات کر رہے ہیں، یہ پڑھے لکھے لوگ ہیں، ان کا قرآن سے دور دور تک کوئی واسطہ نہیں ہے. ان کی ایم فلز اور پی ایچ ڈیز جو ہے نا وہ سائنسی سبجیکٹس میں ہیں، ٹھیک ہے، اور آبسینٹی ان کو سائنس سکھا رہی ہے. آپ سمجھ رہے ہیں بات؟ آپ بات کر رہے ہیں قرآن کی، بھائی اس کے لیے جو ہے آپ کو ٹائم نکالنا پڑتا ہے، پڑھنا پڑتا ہے. بات صحیح ہے، آپ کا کریٹک لے لیا. یہ آپ کی بات بالکل درست ہے، لیکن ان کو پھر اپنے فیلڈ میں تو اچھا ہونا چاہیے نا. اپنی فیلڈ میں بھی نہیں ہے نا، اچھے نہیں ہے، سائنس بھی نہیں آتی ہے. سمپلی سٹ آن اے ٹیبل اینڈ جسٹ ٹاک. لیکن فریڈم آف ایکسپریشن کے اوپر باہر کے ممالک کے اندر بھی بہت سارے قدغن لگے ہوئے ہیں کہ دیز آر دی باؤنڈریز
You cannot go beyond this. जर्मनी में सिंबल ऑफ स्वास्टिकस जो नाजीज का है, जर्मन वो जो नाजी सैल्यूट है वो आप नहीं कर सकते। सही। अब ये क्या चीज है? ये लॉ है, उनका रूल है। आप जाके हर चीज पब्लिक में अपनी गाड़ी में खड़े होकर भी आप नहीं वो कर सकते वो सैल्यूट। इवन अमेरिका में आप रेसिस्ट स्लर्स बोलना शुरू करें, पुलिस पकड़ लेती है आपको, कोई बहुत रेसिज्म के ऊपर जो है ना बड़े लॉज है वहाँ पे। Because सो अल्टीमेट फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है। This is freedom of expression according to you. एग्जैक्टली। But actually, हाँ, public. यानी फ्रांस में देखें, बर्निंग फ्लैग पे आपको पकड़ के अंदर कर देते हैं, आपको फाइन्स होते हैं, आप उनके एंथम के जो है ना मॉक करना शुरू करें उस पे फाइन्स होते हैं। इंग्लैंड में ये फाइन्स हैं। तो ऐसा नहीं होता कि जिधर मर्जी जाओ आपका है तो आपके ब्लाइंड आए। हर जगह पे कोई ना कोई कवानीन होते हैं। हमारा सिर्फ कहना ये है कि हमारा दीन हमें अल्लाह ताला का कानून बताता है, वो ये है, ठीक है, जो सबसे बेस्ट है। आप किस कानून पे चलना चाहते हैं ये आप बताएं जरा पहले, ठीक है ना? पहले तो ये क्लैरिफाई करें। तो हम कहते हैं जो अल्लाह का कानून है वो सबसे बेस्ट है एंड वी शुड फॉलो दैट। हम हैं मुनाफकत के समंदर की मछलियां, बैठ जाते हैं दावे करने। मादर पिदर वगैरह ये टर्मिनोलॉजी बहुत पीछे रह गई है। ट्रांसह्यूमन्स आ रहे हैं इन इश्यूज को, शराब, शबाब, हिजाब, बस। अब उनने उसको कहा क्या नहीं कि मादर पितर आजाद क्या होता है, उन्होंने तुम्हारे मादर पितर उल्टे लटका दिए। और फिर देखिए इनका वही आर्गुमेंट जो बार बार उनकी एक टेप है ना, ब्रोकन रिकॉर्ड बार बार चलता रहता है। फिर वही कश्मीर फिलिस्तीन, मतलब ऐसे जब वर्ड्स बोलना शुरू कर दो, रैंडम वर्ड्स, कश्मीर फिलिस्तीन, और ऊंचा बोलो, बदतमीजी से बोलो और बीच में एक दो गालियां भी दे दो मीनिंग तरीके से हाँ। अगले बंदे का मजाक उड़ा के। तो दिस विल मेक सेंस। बेसिकली इनका आर्गुमेंट वो है कि वेस्ट तुम्हारे से टेक्नोलॉजी में आ गया, ठीक है ना? बेसिकली इनका आर्गुमेंट क्या है? इसी सारी जो उन्होंने वर्ड्स फेंके ना, मैं इनको कनेक्टिंग द डॉट्स करके जुमला बना रहा हूँ। ये बेसिकली कहना ये चाह रहे हैं कि वेस्ट देखो तुमसे टेक्नोलॉजी में कितना आगे निकल गया, टेक्नोलॉजी में आगे निकल गया, अब तुम भी उसी की तरह बनो इन ऑर्डर फॉर यू टू फाइंड सक्सेस। ये कह रहे हैं। और कह रहे हैं कि शराब, शबाब और हिजाब, बस इसमें गुम हो गए तुम सारे, ठीक है? मतलब कि सोशल एथिकल वैल्यूज भाड़ में गई तुम्हारी, ठीक है? टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स। आपको पता है बिल्कुल 100% यही आर्गुमेंट फिरौन ने दी थी। सूरह ज़ुखरुफ में अल्लाह ताला बयान करते हैं कि मूसा अलैहिस्सलाम को उसने कहा था कि भाई मेरे तो पांव के नीचे से दरिया बहते हैं, मेरे पास तो ये है वो है, मालूम होता है अगर मूसा हक पे होता इसके पास पैसे ना होते, ये इतना गरीब क्यों है? लेकिन अल्लाह सुब्हान ताला ने बता दिया कि मूसा के पास जो वो तेरे पास नहीं है, वो हिदायत है। सो आपकी सक्सेस का क्राइटेरिया जो है ना, एक होती है प्रोग्रेस जो आप कहते हो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। हम मुसलमान उसके खिलाफ नहीं है। आप इस्लामिक गोल्डन एज उठा के देखें, यू विल फाइंड कि इस्लामिक यानी कितनी एडवांसमेंट हुई है, और इसी इस्लामिक गोल्डन एज की बेसिस पे इनलाइटनमेंट एरा भी आया है और सब कुछ आया। तो हम लोग साइंस के खिलाफ नहीं है, लेकिन कभी भी आप मुआशरे के अंदर दो तरीकों से एक मुआशरा प्रोग्रेस करता है। एक होता है जो मुआशरा साइंस एंड टेक्नोलॉजी में प्रोग्रेस करता है, और एक होता है एथिक्स मोरालिटी में प्रोग्रेस करता है, ठीक है? दो किस्म की प्रोग्रेस है। सो वेस्ट जो है वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी में आ गया, बड़ी शानदार बिल्डिंग्स हैं, सड़कें बड़ी अच्छी हैं, बड़े बड़े माशाल्लाह ग्लास के टावर बने हुए हैं, और आईफोन वहां से आ रहे हैं, डिफरेंट वहां से डिवाइसेस आ रही हैं, सब कुछ आ रहा है, वेरी गुड, फैंटास्टिक। लेकिन यही मुआशरे हैं जो सबसे ज्यादा डिप्रेशन में गए हुए हैं, हाईएस्ट सुसाइड रेट्स वहां पे हैं, हाईएस्ट डोमेस्टिक वायलेंस के रेट्स वहां पे हैं, ये जो ना ड्रंकन ड्राइविंग के जो ना वाकयात वहां पे हैं, डोमेस्टिक अब्यूज के वाकयात वहां पे हैं, सबसे बड़े पोर्नोग्राफिक रिंग्स वहां पे बने हुए हैं, चाइल्ड पोर्नोग्राफी के अड्डे वहां बने हुए हैं। फैमिली सिस्टम का तो बेड़ा गर्क वैसे ही हो चुका है। बाप को तो आपने घास नहीं डालनी होती, 17 में आप छोड़ के निकल जाते हैं। मैं खुद इंग्लैंड में अपनी आंखों से मैंने देखा है किस तरह बच्चे 17-18 की एज में छोड़ के चले जाते हैं, और फिर साल बाद जो है ना हैप्पी फादर्स डे, हैप्पी मदर्स डे, खुदा हाफिज, बस दैट्स प्रीटी मच द एंटायर सोसाइटी, जो बाहर से बड़ी साफ सुथरी है। सो एक है साइंटिफिक टेक्नोलॉजी में डेवलपमेंट, ये बिल्कुल डिफरेंट सब्जेक्ट है। एथिक्स मोरालिटी इज अ डिफरेंट सब्जेक्ट। जस्ट बिकॉज एक बंदा साइंसदान है तो क्या इस्लाम भी वही बताएगा आपको? नहीं बताएगा। इस्लाम के लिए, एथिक्स के लिए, मोरालिटी के लिए आपको उनके एक्सपर्ट चाहिए, साइंस के लिए आपको साइंस के एक्सपर्ट चाहिए। डोंट मिक्स द टू टुगेदर। हसन निज़ार साहब का जो इन्होंने जुमले बोले हैं और ये बातें की, ये वर्ड्स थ्रो किए हैं, वो कह रहे हैं देखो अगर जहाज के अंदर दो लोग आपस में यूं कर रहे हैं तो देखो यही हरकतें करके वेस्ट कहां पहुंच गए। यानी इनको छोड़ के, इनको इग्नोर करके इस किस्म की बातों को, पेटी डिस्कशन को छोड़ के वो कहां तरक्की करके, और तुम अभी तक उधर ही फंसे हुए हो, हिजाब में फंसे हुए हो, तुम फंसे हुए हो, शराब में फंसे हुए हो, और तुम शबाब में फंसे तो हो। हसन निसार साहब आप तो नहीं फंसे हुए ना, आप कहाँ पहुंचे हैं? हाँ। आप अपनी बात करें। हम ये कहते हैं कि बेसिकली ये सबको जो साथ लेके चलना देखिए, ये जो इनका आर्गुमेंट है ना, ये बड़ा लेम आर्गुमेंट है। मैं इसलिए कहना चाह रहा हूँ कि असल में ये जो बात है ना कि जी वो वेस्ट इस वजह से तरक्की नहीं किया उसने साइंस एंड टेक्नोलॉजी में क्योंकि वो बेगैरत हो गए। एग्जैक्टली। उसकी जहां उन्होंने ये किया ना, उनके सोसाइटी तबाह हुई है, उनकी नस्लें तबाह हो रही हैं। अभी फैमिली सिस्टम के तो वैसे ही बड़ा गर्क हो गया, डिवोर्स रेट सबसे हाई है, शादी वैसे कोई नहीं करता, ठीक है? सोसाइटी में सोशल ईवल ऐसे ही है, यानी औरतें जो है वो आपके जो ना बहुत सारे हराम प्रोफेशंस में जा रही हैं। सो द आइडिया इज कि आपने उस
लिहाज से अगर आप देखें तो पूरी सोसाइटी आपकी डिजेनरेट कर गई है, लेकिन बिल्डिंगें आपके पास बहुत अच्छी है, टेक्नोलॉजी बहुत है। टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी है, रॉकेट बन गए हैं, ये हो गया, सैटेलाइट बन गई है, लेकिन सोसाइटी आपकी क्रम्बल कर गई और इसी के ऊपर इनकी पूरी सोसाइटी कोलैप्स कर जाएगी। ये मैं आपको पहले बता दूं, मुआशरा तरक्की कर ही नहीं सकता। विल डुरैंट की किताब है जिसमें उसने ये बात लिखी है कि सोसाइटीज जो है ना वो अपने मॉरल एथिकल वैल्यूज की वजह से कोलैप्स करती हैं। और ये गोरा हिस्टोरियन है जो कह रहा है कि बेसिकली बिकॉज ऑफ मॉरल डिक्लाइन सोसाइटीज का राइज एंड फॉल होता है। मैं आपको एक पिक्चर पेंट करता हूं जो इस वक्त यूरोप की एक आम पिक्चर है। वो पिक्चर ये है कि आप पैदा होते हैं, आप एक इंस्टीट्यूशन में पैदा होते हैं, ठीक है, यू आर बोर्न इन अ हॉस्पिटल। उसके बाद आपको इंस्टीट्यूशन जो है ना वो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री जो है वो आपको टीके लगाती है, आप वैक्सीनेट होते हैं। उसके बाद आप डे केयर के इंस्टीट्यूशन में जाते हैं, उसके बाद आप वहां से निकल के स्कूल के इंस्टीट्यूशन, कॉर्पोरेट इंस्टीट्यूशन में जाते हैं, उसके बाद आप जो ना कॉलेज में जाते हैं, फिर आप यूनिवर्सिटी में जाते हैं, फिर आप अपने हाथ फैलाते हुए किसी इंस्टीट्यूशन से कहते हैं कि मुझे नौकरी दे दो। उस नौकरी में आप 30, 35, 40 साल लगाते हैं। उसके बाद आप एक इंस्टीट्यूशन में चले जाते हैं जिसको ओल्ड एज होम कहते हैं, क्योंकि आपके बच्चे जो थे वो 17-18 साल की उम्र में आपको छोड़ के जा चुके हैं और वो अपने लाइफ को फॉलो करना चाहते हैं, बिकॉज उनको पता है ये जिंदगी ही सिर्फ है हमारे लिए, बस जन्नत जहन्नम किसी ने नहीं देखी, जो कुछ करना है वो यहाँ करना है, वो इस लाइफ पे चल रहे हैं। और फिर आप ओल्ड एज होम में जाते हैं या अपने ही अपार्टमेंट में आप बेचारे अकेले मर जाते हैं और आपकी लाश वहां पे 3 दिन तक गलती सड़ती रहती है, जब तक कि नेबर्स को पता चलता है और नेबर्स आके कहते हैं कि जी यहाँ से बदबू बहुत आ रही है। वो आपको निकालते हैं, आपको क्रीमेट कर देते हैं या वो, और आपका आखिरी जो है ना कोई $10,000 जो है ना $10,000 उसमें भी लग जाता है और आपको फ्यूनरल भी जो है ना वो स्टेट देती है। यानी यू आर बोर्न इनटू कॉर्पोरेट इंस्टीट्यूट्स एंड यू डाई ऑन कॉर्पोरेट इंस्टीट्यूट्स एंड द ह्यूमन वैल्यू इज गॉन। यानी वो जो हम चीजें एंजॉय करते हैं यहाँ पे कि जी फैमिली होती है, यूनिट होती है, मामू खाला पुप्पो वगैरह, वो सारा सारा फैब्रिक जो है वो इज इक्वल टू जीरो कर दिया। Is this success? At the No, end? this is a very It's not sad life. success. That's what I was trying to गोरा tell. खुद अभी जो है ना वो इस बात से तंग आया हुआ है कि यार it's a very sad existence. This is the sad reality of the West. मैं कोई ऐसा बंदा नहीं हूँ जो सारी उम्र पाकिस्तान में रहा। I've lived in the UK, I've lived in Australia, I've seen how things are. बाकी कंट्रीज में भी बहुत मैं ट्रैवल किया, मैंने देखा कि वहां पे एक्चुअली लाइफ में क्या हो रहा होता है, वहां पे लाइफ कितनी टफ है। ठीक है, आपने इंफ्रास्ट्रक्चर बड़ा प्यारा बना दिया, वो भी कॉर्पोरेशंस ने बनाया, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे आप हर इंडिविजुअल का लाइफ देखो वो क्या है। सबसे ज्यादा एंटी डिप्रेसेंट किस मुल्क में मिलते हैं?